اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ اول ایک عورت تو وہ ہے جو پاک دامن، مسلمان، نرم طبیعت، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی، اور زمانے کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو، یعنی سیدھی اور سادی ہو، اور گھر والوں کو چھوڑ کر زمانے کے فیشن پر نہ چلتی ہو۔ لیکن ایسی عورتیں دنیا میں بہت کم ہیں۔ اور دوسری عورت وہ ہے جو خاوند سے بہت زیادہ مطالبے کرتی ہو اور بچے پیدا کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اور کام بھی نہ ہو۔ اور تیسری وہ عورت جو خاوند کے گلے کا توق ہو اور جونک کی طرح چمٹی ہوئی ہو، یعنی بد اخلاق بھی ہو، اور اس کا مہر بھی یعنی حق مہر بھی اتنا زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کا خاوند نہ اس کو چھوڑ سکتا ہو۔ یہاں پر سبھی کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی بہنوں کو، سبھی بیٹیوں کو ہدایت دے اور دین اسلام پر اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شوہروں کی خوشی کا باعث بننے والی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار آپ بچپن سے خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب کے دوران آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے لوگو، جس عورت میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے کبھی شادی نہ کرنا۔ جس لڑکی میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں اس سے ہرگز شادی نہ کرنا، اور ایسی عورت سے فوراً دوری اختیار کر لینا۔ یہ چار عیب رکھنے والی عورت اتنی خطرناک ہے، فرمایا کہ یہ عورت جس راستے سے آ رہی ہو اس راستے کو بھی چھوڑ دینا، یعنی شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی ایسی عورت اتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے کہ ایسی عورت جس راستے سے گزرے اس راستے سے بھی کبھی نہ گزرنا۔ اور فرمایا کہ ایسی عورت یعنی جس میں یہ چار عیب ہوں وہ عورت دنیا میں بھی ذلیل ہوگی، اور ایسی عورت آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگی۔ ایسی عورت دنیا میں بھی تباہ و برباد، اور آخرت میں ایسی عورت کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور فرمایا مزید انہوں نے کہ اگر تم ایسی عورت کے ساتھ جڑے رہو گے اور تم بھی ایسی عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو ایسی عورت قیامت کے دن خود بھی جہنم میں جائے گی اور تمہیں بھی جہنم میں لے جائے گی، اور ایسی عورت خود بھی مصیبتوں میں گرفتار رہے گی اور خود بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار رہے گی، اور تجھے بھی مصیبتوں میں گرفتار کر دے گی۔ ایسی عورت، ایسے عیب رکھنے والی عورت جس گھر میں چلی جائے وہ اس گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسے چار عیب رکھنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود اجڑ جاتی ہے۔ ایسی عورت ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین لیتی ہے۔ جب اتنی زیادہ لوگوں نے تاکید سنی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ کون سے چار عیب ہے جس سے میاں اور بیوی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائیو، میں نے اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ جس عورت میں یہ چار عیب یعنی ایسی عورت جس میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں اس عورت سے کبھی شادی مت کرنا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ پہلا عیب متکبر عورت،
पहली चीज क्या फरमाई कि तकब्बर करने वाली औरत, और फरमाया लोगों तकब्बर करने वाली औरत अल्लाह को भी नापसंद है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद है। और यहाँ पर एक चीज मैं सभी भाइयों के लिए और सभी बहनों के लिए कहना चाहूंगा कि तकब्बर या गुरूर उसको सजता है जिसके पास कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए हो। जिस तरह अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ये कायनात नहीं थी तब भी अल्लाह था, ये कायनात है तब भी अल्लाह है, और जिस दिन ये कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी उस दिन भी अल्लाह की जात मौजूद होगी। और इस दुनिया में किसी के पास भी कोई चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं रही, तो फिर तकब्बर किस बात का करना, और फिर क्या फायदा ऐसी चीज का या ऐसे काम का जिससे अल्लाह नाराज हो। और ऐसी औरत जो अपने शौहर के सामने अपने हुस्न पर नाज करती हो और अपनी जवानी पर नाज करे, और ऐसी औरत जो खुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती हो, या दूसरे लफ्जों में ऐसी औरत जो खुद को दूसरी औरतों से ज्यादा खूबसूरत समझती हो और अपने शौहर के सामने अकड़ अकड़ के बात करती हो, बदतमीजी से बात करती हो और दूसरी औरतों से सलाम नहीं करती तकब्बर की वजह से, और इस सोच की बुनियाद पर कि ये औरत मुझसे बहुत दर्जे में हल्की है तो मैं इसको क्यों सलाम करूं। और अपनी जवानी और अपने हुस्न पर नाज करने वाली औरत और अपने शौहर के आगे अना रखने वाली औरत, ये ऐसी खतरनाक और मुतकब्बर औरत है कि ऐसी औरत जिस घर में चली जाए वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो वो फरमाने लगे कि खुदारा ऐसी औरत से शादी मत करना जो अपने हुस्न पर नाज करती हो, ऐसी औरत से शादी मत करना वो औरत जो अपनी जवानी पे नाज करती हो। ये मुतकब्बर लड़की या औरत जिस रास्ते से आ रही हो तो शादी करना तो दूर की बात, उस रास्ते को भी छोड़ देना। और फरमाया उन्होंने दूसरा ऐब रखने वाली औरत की निशानी कि ऐसी औरत या बेटी जो अपने वालिदैन की नाफरमान हो, वो बूढ़ा बाप जो मशक्कत की चक्की में पिस पिस कर अपने दिन रात तकलीफ में गुजार रहा हो और उसने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी की परवरिश की। और हमारे इस्लाम में है कि अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करनी चाहिए, और वैसे ही कोई अल्लाह का बंदा अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करे और अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ उस पर लगा दे। और ऐसे बाप की जो बेटी नाफरमानी करती हो, वो कहने लगे कि ऐसी औरत तेरी फरमाबरदारी कैसे करेगी। यानी ऐसी बेटी या औरत जिसने अपने बाप का हया नहीं किया, जिसने अपने बाप की कदर नहीं की, उस बाप ने जिसने छोटे से लेकर बड़े होते तक उसकी परवरिश की, उसके नाज उठाए, उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया, अपने मुंह का नवाला तोड़ के उसके मुंह में डाला, और जब वो अपने बाप की वफादार नहीं हुई तो वो तुम्हारी कैसे वफादार होगी। और वो माँ कायनात का सारा दर्द एक तरफ, जब कोई माँ बच्चा जन्मती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उस लम्हे का उस वक्त का दर्द एक तरफ, और वो कहने लगे कि जो ऐसी माँ की नाफरमान हो वो तेरी कैसे वफादार हो सकती है या फरमाबरदार हो सकती है। तो ज्यादा बेहतर यही है मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जब भी शादी करें तो थोड़ी सी पूछताछ कर लिया करें कि बेटी कैसी है। और दूसरी बात कि वालिदैन की नाफरमानी उन गुनाहों में से गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरे अल्लाह करीम ने कुरान पाक में अपने हक के बाद वालिदैन के हक को बयान किया है, और ये अल्लाह का हुक्म है, उसका फरमान है, और जो अल्लाह का हुक्म हो उसमें रद्दो बदल नहीं हो सकती। तो फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो कि ऐसी बेटी, ऐसी औरत जो अपने वालिदैन की नाफरमान हो उससे हरगिज़ शादी ना करना। और तीसरे ऐप के बारे में वो फरमाते हैं कि ऐसी औरत जो बेअदब हो, जो औरत अपने भाइयों का अदब ना करती हो,
जो औरत अपनी माँ का अदब ना करे और वो बेटी जो अपने बाप का अदब ना करे, फरमाने लगे कि ऐसी बेटी, ऐसी औरत तेरा अदब क्या करेगी। ऐसी औरत से शादी मत करना जिसके पास अदब जैसी दौलत ही ना हो, जिसके पास एहतराम जैसा खजाना ना हो। और वो फरमाने लगे कि ऐसी औरत से कतन शादी मत करना जो औरत झूठ बोलती हो। और वो कहने लगे कि खुदारा झूठ बोलने वाली औरत से कभी शादी मत करना। छोटी सी बात को शौहर के सामने ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा करके सुनाने वाली औरत, ऐसी औरत कभी फलाह नहीं पाएगी। और ऐसी झूठी औरत जिस घर में डेरा डाल ले, माओ की गोतें खाली होनी शुरू हो जाती हैं और माओ से बेटे छिन जाते हैं, बहनों के भाई छिन जाते हैं। और ऐसी औरतें जिस घर में हो उस घर में भाइयों में आपस में मोहब्बत खत्म हो जाती है। और झूठ बोलने के बारे में तो हमारे इस्लाम में यह है कि झूठ बोलने की वजह से एक फरिश्ता होता है जो 40 मील दूर चला जाता है, यानी झूठ की नहुसत या उसकी बदबू इतनी ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा मजहब है और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच्चाई की तलकीन की है। और तारीख इन चीजों से भरी पड़ी है कि जो झूठ बोलते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वक्ती फायदा उन्हें जरूर हो, लेकिन उनकी दुनिया और आखिरत यकीनन तबाह बर्बाद हो जाती है। बल्कि इसके बारे में एक हदीस मुबारका भी है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि एक काफिर मुसलमान हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक नसीहत की उसे कि झूठ बोलना छोड़ देना। तो ये देखिए कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है और झूठ हमेशा तबाह बर्बाद करता है और सच्चाई हमेशा निजात देती है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, कोशिश करें कि अल्लाह ताला ऐसी 4 औरतों से आपको और मुझे, हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सभी बेटियों को, सभी बहनों को नेक हदायत वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।